The last heading which we have studied was plant breeding, and the last thing in plant breeding was commercialization. It was clear to everybody? आ गया जी सर, आ गया। हेलो सर, लेकिन आप नहीं आए, अभी दिख नहीं रहा है। नहीं दिख हाँ, यस सर, दिख गए। There was some network problem. What I was telling you that we have completed. Mute your mic, everybody. We have completed the plant breeding. In plant breeding, the last thing which we were studying was commercialization. I think it is clear to everybody also. Anybody is having any doubt? My voice is going. Sana, Shreya? Yes sir, it's perfect. Yes sir. Okay. Now come to new topic. Already we have wasted a lot of time. Biofortification. But, up to what height you can see me just now? So just above your belt and up to your forehead. I am asking this because today it was raining and completely I was wet because today I have come with my bike. So anyhow, I have managed one white shirt from Brijesh sir and pant. Still I am wearing the same. Huh? नहीं, नीचे that same wet pant is there. That's why I was asking क्योंकि इसमें बहुत सारा कीचड़ उचड़ लग गया है. Sir, you will fall ill then तो. No issue. इतना इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं है. बाबा रामदेव जिंदाबाद. Your dedication towards our studies is a great. Okay. Now see biofortification. It is a simple term, but it is a new term for everybody. See in the notes, very simple definition is there. It is a process of breeding of plant to develop varieties having improved nutritional quality. What does it mean? That suppose anybody is doing farming of mustard. किसी ने सरसों की खेती की, तो सरसों की खेती में जो प्रिंसिपल टारगेट होना चाहिए that should be highly oil producing, है ना? जिस मस्टर्ड में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए. ठीक है. अब इसके साथ साथ बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि along with oil we are trying to produce varieties which include some other vitamins, minerals and other things also. समझ आ रही बात कि बायो फोर्टिफिकेशन में हम ये कोशिश करते हैं कि whatever the crops which we are cultivating, we are trying to increase its nutritional quality. जैसे बहुत सारे राइस की वैरायटीज आ गई हैं. हमारे यहाँ हमारे मैनेजर सर जब आते थे तो at that time we were using a variety of rice that was having cost of near about 250 per kg. थोड़ा महंगा था बट वो अलग से आता था. that was medicated rice. उसमें बहुत सारी चीजें वो पेशेंट्स के लिए यूज होती हैं कि उनको अगर कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए. जनरली हम ये जानते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, बट जो अदर कंटेंट्स है जैसे चावल में प्रोटीन, ये हमारे कंसेप्ट से बाहर है कि चावल में प्रोटीन भी पाया जा सकता है, बट उसमें चावल में प्रोटीन भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी थे उसमें. तो ऐसी वैरायटीज को बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें क्रॉप सिंगल हो बट इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल टर्म है. ओनली द थिंग वाज दैट इट इज अ न्यू टर्म, इसलिए इसको थोड़ा सा जान लिया हमने. बायोफोर्टिफिकेशन. नाउ कम टू न्यू हेडिंग, that is mutation breeding. Anybody can tell me the definition of what mutation? What is mutation? Yes sir. Tell me. Yes sir. I will. Anybody? Sanjana, wait. Sanjana, tell me mutation. सर म्यूटेशन में मीन्स होता है जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाना जिससे वो इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा. अच्छा, आकृति
म्यूटेशन, डिफाइन म्यूटेशन. Sir, mutation is a process in which genetic variations of an organism. Anybody else? Anjali. Wait, Anjali Yadav. It is very simple. That's why I am asking to different persons. Yes, sir. बताओ. Sir, genetic change. जेनेटिक चेंज. ठीक है, तुम्हारी दही बहुत अच्छी थी भाई अंजलि. हम लोग कल से ही परसों से खा रहे हैं, अभी अब तक बचा हुआ है, और 5-6 लोग खूब आराम से बैठ के खाते हैं. बल्कि आज प्लान बनाया हम लोगों ने कि दही चूड़ा खाया जाएगा. एक ऐसे भी चेले हैं जो मोबाइल पे ही भेज रहे हैं आम और मुर्गा. ठीक है, और एक ऐसे भी हैं जो पहुंचवा दिए हैं. देख लो डिफरेंस. सर मैं पार्सल करा रहा हूँ आपके. चलिए, म्यूटेशन क्या है जो बता रहे हैं वो ठीक है. थोड़ा सा somebody's mic noise is coming. Who is there? किसके घर बर्तन धुलाई हो रही है? What is mutation? Mutation means a change in genetic material, sudden change in genetic material, that is called as mutation. हमने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा है, 11th में फिर से, sorry 12th में we have to study it again. What is the concept in our mind regarding mutation is that mutation is generally harmful, or we can say that it is correct also that in most of the case mutations are harmful. ज्यादातर केस में mutation harmful होते हैं. जापान का केस सुना होगा, because of atom bomb still the peoples are going through the process of mutation. वहां उस वक्त के जीन में म्यूटेशन हुआ और अब तक की वो म्यूटेशन का प्रोसेस वहां कंटिन्यू है. तभी वहां पे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं they are taking birth by various body deformities. बॉडी में कुछ न कुछ पार्ट्स छोटे बड़े, ये सब ऐसा उनके साथ हो रहा है. हमने इस म्यूटेशन को क्या किया, सपोज करो वी हैव टेकन सम प्लांट. म्यूटेशन का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम किसी में म्यूटेशन करा सकते हैं? तो सिंपली अ प्रोसेस इज दैट वी हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल कंटिन्यूअस एक्सरेज. अगर हम किसी प्लांट को लेते हैं और उसको बार बार एक्सरेज के थ्रू गुजारेंगे तो उस प्लांट के जीन में म्यूटेशन होगा. आई थिंक ये सबको पता होगा कि एक्सरेज, यूवी रेज, वेरियस रेडिएशंस विच आर प्रेजेंट इन सनलाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन. एटम बम, इन सबसे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ये म्यूटेशन कॉज करते हैं. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लांट लिया, उसमें आर्टिफिशियली म्यूटेशन कराया. इट मीन्स व्हाट, कि अगेन एंड अगेन वी आर पासिंग दैट प्लांट थ्रू एक्सरेज और यूवी रेज. इतनी बात समझ में आ रही है? टेल मी. यस सर. इतना क्लियर है ना? ओके. यस सर, क्लियर है. नाउ व्हाट वी डू, कि हमने एक प्लांट लिया, उसको बार बार एक्सरेज के थ्रू गुजार रहे हैं. उस प्लांट में कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे. मोस्ट ऑफ द केस में वो चेंजेस डिसएडवांटेजियस होंगे, बट देयर इज 1% चांस कि उसमें कुछ ऐसे भी चेंजेस आ जाएं विच में बी एडवांटेजियस ऑल्सो. ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए फायदेमंद होगा. इज इट क्लियर? तो अगर वो डिसएडवांटेजियस हो रहा है, मींस कि चेंजेस अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो हम उस प्लांट को वहीं डिस्कार्ड करते जाते हैं. बट इफ out of 10 plant, if any one plant is showing the changes which is advantageous, तो अब उस प्लांट को हमने सेलेक्ट किया और उसका फर्दर यूज करने लगे ब्रीडिंग के प्रोग्राम में. that this complete process is called as mutation breeding. Is it clear, everybody? Yes sir. Okay. Yes, now see what we have written regarding mutation breeding. Sudden change in gene is called as mutation, and this change is transferred to next generation. Sudden change हुआ. Sana, what happened? Sir, nothing. Papa was telling to have tea, but I have rejected. Oh, great dedication for studies. Yes, sir. वाह, क्या जमाना आ गया. बच्चे पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा चाय लेके आ रहे हो. हमारी किस्मत ऐसी होती. सर हम भी आपके ही तरफ हैं. हम भी नहीं, 99% ऐसे ही हैं. सर सुबह से कुछ गया नहीं है. सर हमारा भी नहीं गया है सुबह.
प्लीज ऐसा बात नहीं, वो पापा लाके दिए तो फिर मैं रिजेक्ट कर ही दी ना, मैं तो नहीं पी। नो नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कितना कितना अच्छे तुम लोगों की किस्मत है यार। मम्मी पापा को लग रहा है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं, एकदम IAS बन रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं ये तो मैं जान ही रहा हूँ। पता चला कुछ ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि अगर 1 महीने और लाइव क्लास चला दिया जाए तो बेटा बेटी लोग पढ़ रहे हैं, धीरे से मम्मी पापा पीछे से मुंह में खिलाने लगेंगे, लो बेटा खाते रहो, थक गए होगे पढ़ते पढ़ते। ऐसे भी दिन आ जाएगा। मम्मी पापा का प्यार ही ऐसा है। अब बेटे बेटी लोगों का कितना प्यार है अंगद से पूछा जा सकता है। ओके, है सर, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। बट कितना भी होगा, बट द डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन विच पेरेंट्स आर हैविंग फॉर यू पीपल, ये तुम्हारे अंदर नहीं होगा। ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, अदरवाइज इस पे डिबेट शुरू कर देंगे तो खत्म नहीं होगा। बट मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, बीइंग पेरेंट ऑल्सो और अपने पेरेंट का भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि किसका कितना डेडिकेशन है। एटलीस्ट दोनों का, तुम अभी दोनों का एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं है बट मुझे है, तो मैं ये बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि पेरेंट्स का जो डेडिकेशन है वो बच्चों का नहीं हो सकता है। चलिए, नाउ सी, टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ प्लांट, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज डन। In this, the selected plants are passed to mutagens. Mutagens, what is that? We have written in bracket, mutagens includes various agents which are responsible for causing mutation. जितने भी agents हैं जिनसे mutation होता है, that are called as mutagens. Okay? If the resultant plant shows the desirable character, it is used for further breeding program. I think both these headings are clear. Biofortification and mutation breeding. Is it clear? Just raise your hand. Chalo, come to next topic, that is also new thing, SCP. If you will go to the full form, it is single cell protein. Just see what we have written. All these terms are new. It is very easy, but only it is new. That's why we have to study it. See what we have written in SCP. The term SCP was given by Carl Wilson. It means large scale production of microorganism which produces protein. इसके फुल फॉर्म में जाएंगे और जो इसका कंसेप्ट है तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। हमारा टारगेट क्या है इसमें सिंगल सेल प्रोटीन में, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना, जैसे एक बहुत कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पाइरुलाइना, इट इज अ फंजाई, ठीक है। स्पाइरुलाइना का क्या खास कैरेक्टर है कि इट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो हम इस पूरे फूड प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइरुलाइना या स्पाइरुलाइना जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग प्रॉपर या लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन मटेरियल इन देम, वैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि यहां जो वर्ड यूज हो गया सिंगल सेल, तो ऐसा नहीं है कि वी आर प्रोड्यूसिंग एनी पर्टिकुलर सेल, हम एक सेल नहीं बना रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑल दैट सेल्स आर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now come to the new heading that is important, Tissue culture. tissue culture in wait in some classes. हाँ, yes, tell me. सर ये सिंगल सेल प्रोटीन से कुछ था सर। हाँ बोलो। ये पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे जो फैक्ट्रीज पोटैटो को प्रोसेस कर रही है, तो उसमें क्या होगा ये नहीं समझ में आ रहा, वो कैसे यूज कर सकते हैं? पोटैटो के जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है, पोटैटो एक ऐसा वेजिटेबल है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो हम सब्जी कॉमनली देख रहे हैं, इसके अलावा चिप्स वगैरह जो भी बन रहे हैं, ये जहां पर बनते हैं इनको प्रोसेसिंग, मतलब जहां पर उससे रिलेटेड काम होते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट और पोटैटो प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो वहां पे स्पाइरुलिना को कैसे ग्रो कर सकते हैं? मतलब कहाँ ग्रो करेंगे, फैक्ट्री में? नहीं, वहां क्या होता है, पोटैटो की जब धुलाई होती है, अगर घर पे चिप्स बनता हो, किसी के घर चिप्स बनता है तो किसी को पता है प्रोसीजर? अच्छा क्वेश्चन था। सर पता है। अच्छा, मैं वेट इन्हीं को बताने दो, अंगद को। हाँ बताइए कैसे बनाते हैं।
तो उसको पहले धुल के उसका पीलिंग करते हैं उसका, हाँ छिलका निकाल के फिर उसको दोबारा पानी में रखते हैं, हाँ और पानी में से निकाल के उसको जो चिप्स काटते हैं, फिर वो चिप्स भी पानी में स्टोर करते हैं। उसके बाद उसका आगे का प्रोसेसिंग होता है, उसको उबाल के सुखा के फिर बना। जो बता रहे हैं शायद सबको यही जानता होगा। थोड़ा सा अगर अपना कंसेप्ट बता दोगे, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन से ही दे लेता हूं, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर सिंपली इसमें हम जाएंगे तो अगेन एंड अगेन वी आर पुटिंग द पोटैटोज इन वाटर, हो रहा है काटने के पहले, काटने के बाद, और उस पानी को हम क्या करते हैं, सिंपली फेंक देते हैं, यही करते हैं। हाँ जब हमने पोटैटो को पतला पतला चिप्स की तरह काट दिया तो उसके अंदर जितना भी डिजॉल्व कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, ये कहाँ जाके मिक्स हो जाएगा, वाटर में, वाटर में। और इट मीन्स कि नाउ दैट वाटर इज कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। पोटैटो में जितने भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स थे, वो सारे वाटर सॉल्युबल मिनरल्स कहाँ चले गए, पानी में। और ऐसे वाटर का हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्पाइरुलाइना है, ईस्ट है, इन सबों को ग्रो कराने के लिए ऐसे वाटर को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो सर इन सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको हम फूड की तरह कंज्यूम करेंगे फिर? हाँ, इसीलिए कर रहे हैं। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना जिनमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है और जिनको हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पीएच, टेम्परेचर सब कुछ देना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर मशीन्स होती हैं, बायो रिएक्टर्स जिनको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। और कुछ? नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू कल्चर। Now see what we have written in tissue culture. It is a technique of growing cells or tissues in lab condition. The plant part used in tissue culture is called as explant. Suppose we are taking a leaf of any plant for that culturing. That leaf is now called as explant. हमने किसी प्लांट का छोटा सा हिस्सा लिया जिसको एक्सप्लांट बोला गया, उसको आगे क्या करेंगे? द कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट सेल टू जनरेट अ होल प्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। एक नया वर्ड है इसको, इस वर्ड का मतलब सिंपली क्या है कि अगर प्लांट के किसी एक सेल के या किसी एक पार्ट के पास ये कैपेसिटी हो कि वो पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल वन कॉमन प्लांट इज देयर ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का नाम सुना? यस सर। क्या होता है ये? सर लीव्स के एपेक्स से वो दोबारा जनरेट कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट का एग्जांपल जानते हैं, किसी को स्टेम से काट के लगा देते हैं, किसी के लीफ से निकल जाता है, किसी के रूट से निकल जाता है। इसी कैपेसिटी को नाम दिया गया है क्या? टोटिपोटेंसी। की प्लांट का कोई एक सेल या प्लांट का कोई एक पार्ट पूरे प्लांट को जनरेट कर सके। ये कैपेसिटी प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती है। हमारे कोई उंगली कट जाए तो उससे नया मेरे जैसा आदमी नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो नॉट ऑल प्लांट्स बट सम प्लांट्स हैव दिस प्रॉपर्टी दैट any part or any cell of their body can generate complete plant. That property is called as totipotency. Is it clear? Okay, now see, the method of growing plant through tissue culture is called as micropropagation. Micropropagation में दो words आ गए, one is micro word use हो गया because we are using either cell or tissue, and propagation means उसको propagate कराना है medium में। प्रोपेगेशन मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर और टू ग्रो। हम किसी छोटे से पार्ट से पूरे प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड्स आर जेनेटिकली सिमिलर एंड आर आल्सो कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स। फिर से आ जाएंगे, सोमा क्लोन्स में दो वर्ड आ गए, सोमा एंड क्लोन्स। क्लोन मीन्स नकल। Sir, exact copy. Clone means exact copy, and soma word means body. Soma word has been taken from somatic cells. दो cells है ना,
वन इज सोमेटिक सेल एंड अनदर इज जर्मिनल सेल। तो ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मिनल सेल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज somatic cells and this the offsprings are called as soma clones. Any doubt is there? ये 3-4 नए टर्म्स आ रहे हैं, एक्सप्लांट, सोमा क्लोन्स, माइक्रो प्रोपगेशन, टोटिपोटेंसी। वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। सर एक मेरा डाउट है। हाँ बोलिए। सर क्लोन्स तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और सर क्या कहते हैं इवोल्यूशन के लिए सर ये वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, तो सर क्लोन बना के फिर वेरिएशन उनमें कैसे आएगा? अपने मतलब पेरेंट्स जाने वो सुपीरियर कैसे होंगे? वेट अभी मैं इसको बताता हूँ। इससे पहले जो बचा है 4 लाइंस और बची हैं उसको पहले देख लो, ठीक है। टिश्यू कल्चर में आगे आएंगे तो व्हाट वी हैव रिटन मेरिस्टेम कल्चर। यहां पर हम क्या करेंगे? मेरिस्टेम मींस upper part means the part of plant which are containing meristematic cells। उनसे अगर हमने सेल को लेके टिश्यू कल्चर किया तो that is called as मेरिस्टेम कल्चर। प्लांट के एम्ब्रियो से किया तो एम्ब्रियो कल्चर। एंथर ऑब्लिक पॉलन कल्चर मींस एंथर और पॉलन, ये कि पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ प्लांट, है ना? They are the reproductive cells of plant. So if we are culturing या if we are producing new plant by this method, it is called as anther or pollen culture. And the last is protoplast culture. This word protoplast has been taken from the word protoplasm. Protoplasm means what? Cytoplasm plus nucleoplasm. Cytoplasm plus nucleoplasm. It means what? If we are taking a complete cell, cytoplasm and nucleoplasm, if we will combine, it will form complete cell. So that's why it is called as protoplast culture. ठीक है। This tissue culture heading, I am just giving you a summary of tissue culture. You go through the NCERT book. If you find any new terms or any doubt in just that, you may ask to me. Okay. Now tell me first. I want to tell you a few things. That 2 days back I have sent you the notes of one more chapter on WhatsApp. Everybody has got that notes? Yes, sir. Yes, sir. In next class, if any doubt will be there, first I will clear your doubts regarding this chapter. Afterwards, we will start the 3rd chapter. Okay. So we are going as per our syllabus in a very proper and smooth manner. It means what? Within 20 to 25 days, we are going to nearly complete 3 chapters in a proper manner. अब ये 3 chapters जब भी स्कूल खुलेगा तो ध्यान रखना कि those who are not joining और those who are not taking the classes, थोड़ा उनको बता देना कि रिपीट तो करना मेरी मजबूरी होगी, I will bound to repeat, but that repetition will not be in the proper manner. वो ऐसे नहीं होगा जैसा मैं लाइव क्लास में इतनी मेहनत करके बारिश में भीग के आके पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो वो रिपीटिशन उनके लिए समरी की तरह ही होगा, जो भी आपसे कांटेक्ट में हो, और या तो वो अलग से आएंगे शाम को हमको बैठ के पढ़ेंगे, बिकॉज उनकी वजह से हम पूरे क्लास का दोबारा से नुकसान कोशिश करेंगे कि ना हो, और अगर हो तो सिर्फ उतना ही हो जहां पर डाउट रह गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्न पे जब भी मेरी क्लास होगी तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ सम डाउट वाज देयर। इसने पूछा आकृति ने कि क्लोन्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं तो इट विल नॉट बी गुड फॉर इवोल्यूशन। ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई एग्जैक्ट कॉपी होगी, वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। बट इसका फायदा क्या है, जो हमने इन ब्रीडिंग में जाना था कि अगर हमें किसी चीज की प्योर वैरायटी चाहिए तो वहां पर हमें वेरिएशन को बंद करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट द प्योर वैरायटी। यही फायदा होता है क्लोन्स का भी, कि अगर एग्जैक्ट मेरे जैसा मास्टर चाहिए, चाहते हो कि ना थोड़ा भी छोटा हो, ना बड़ा हो, ना गोरा हो, ना काला हो, तो उस केस में वेरिएशन को बंद करके मेरा क्या बनाना पड़ेगा? क्लोन बनाना पड़ेगा। तो यही सेम एग्जांपल हम प्लांट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमने एक आम का पेड़ बना लिया जिसकी पल्प क्वालिटी, अंजलि यादव माइक म्यूट करो, लगातार तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है। अगर हमने ये बना लिया जिसमें पल्प क्वालिटी अच्छी हो, जो मीठा भी हो, जिसमें बीमारी भी ना होती हो, तो इन सबके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमने जो वैरायटी बनाई दैट सेम वैरायटी शुड बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 3-4 जनरेशंस, तो उसमें हम क्लोन बनाएंगे। क्लियर आकृति? सर तो वो तो हम लोग ऐसे क्लोन बना लिए, लेकिन सर जब क्लोन में 3-4 जनरेशन के बाद फिर उसमें वेरिएशन आएगा कि वो हमेशा मतलब जब तक
अगर हमने उसमें कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग कराते रहे तो वेरिएशन नहीं आएगा। बट इसीलिए जो वेराइटीज आज हम एक नई वेराइटी बनाते हैं, तो अगर हम ये उम्मीद करें कि दैट न्यू वेराइटी विल कंटिन्यू फॉर 10 इयर्स, तो ऐसा नहीं होता है। ये आज हमने जो वेराइटी बनाई, ये 3 साल 4 साल के बाद इससे अच्छी कोई ना कोई वेराइटी मार्केट में आएगी। समझ आ रही है बात सर? यस सर, ऐसा तो नहीं ना है कि इनब्रीडिंग अगर करा रहे हैं तो वेरिएशन नहीं होगा? होगा, जरूर होगा इनब्रीडिंग पे वेरिएशन, लेकिन बहुत कम होंगे और बहुत कम लेवल पे। इनब्रीडिंग का वेरिएशन इतना कम होगा कि वो उसके सर्वाइवल या इवोल्यूशन को कहीं से भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। और टिश्यू कल्चर का मोटो ही यही होता है कि हम वेरिएशन ना करें। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि टिश्यू कल्चर का मतलब ही यह है कि वेरिएशन मिनिमम हो। इसीलिए इन ब्रीडिंग के साथ जो वर्ड यूज हुआ दैट वाज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बोलिए भी क्लास ले रहे हैं। वेट बेटा, दीजिए 1 सेकंड वेट करो। हाँ, एनी अदर डाउट? 1.5 minute is still remaining. Yes sir. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक सेल्स को लिया 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। सोमेटिक सेल समझ में आया? अदर सेल्स मतलब जो नॉर्मल सेल्स है, जर्मिनल सेल्स को, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हटा दो। नॉर्मल बॉडी के सेल लिया किसी 2 ऑर्गेनिज्म का, उनको मिक्स किया, दैट विल बी कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सर ह्यूमन में प्योर वैरायटी कैसे मतलब हम ऑब्टेन करेंगे? ह्यूमन में कैसे प्योर वैरायटी मिल जाएगी? हम किसी को लैब में रख के थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमन के लिए। ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब भविष्य में तुम लोग साइंटिस्ट बनोगे तो हो सकता है बनाओगे। तो ह्यूमन सेल से कैसे ऑर्गन का डेवलप करते हैं? फिर से बोलो। स्टेम सेल से 3D ऑर्गन्स बनाते हैं ना, साइंटिस्ट बनाते हैं, ये कैसे होता है? स्टेम सेल के बारे में बताया था मैंने शुरुआत में जब इम्यूनिटी बता रहे थे। हर एक ऑर्गन का अपना स्टेम सेल होता है। हाँ, और उससे हम पूरे ऑर्गन को या पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। Okay, now wait, now time is over. If any other doubts are there, it will be cleared tomorrow. Okay, and be ready for the new chapter also, and keep on studying for test also. Okay, everybody. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye.